Hi students, how are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we will discuss about the various concepts of the matrix. Okay, so in the first lecture, okay, we had discussed the basic concepts regarding the matrix chapter, and some solutions were also provided, and some concepts, basic concepts were discussed. So in this lecture we will discuss various things about the matrix. Okay, so matrix, actually this matrix concept, when just we are using this matrix, when we will use this matrix concept. Okay, whenever just you want to locate something, okay, just you want to locate something, then you need to use matrix concept. And whenever just you need to find the value of something, some row column arrangement, then you need to use determinant. Okay, so matrix is row column arrangement, that means array system, as you all know. So if you want to locate someone, if you want to, that means some students are standing in the prayer, so just if you want to locate one particular student, then how can you locate? Just you third number row, fourth number column, just stand up, ऐसे बोलते हो ना. तो वही लोकेट करने के लिए जो है वो मैट्रिक्स मेथड यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स चैप्टर में जैसे टू डिफरेंट मैट्रिक्स है. ओके, टू डिफरेंट मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ओके, if just write if A and B are two matrices and defined by Aij M cross N and B equals to Bij P cross Q. ओके, और यहाँ पर M क्रॉस N भी ले सकते हो, बिकॉज इफ यू वांट टू ऐड समथिंग देन देयर ऑर्डर्स मस्ट बी सेम. ओके, सो सेम ऑर्डर्स, तो M क्रॉस N यूज कर सकते हो. सो डिफाइंड बाय दिस, दैट इज A equals to, if you take this matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, and B, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. Then A plus B equals to, if you add these two matrices, add means what? You are adding the elements of these two matrices. Okay, but elements, यहाँ पर तो बहुत सारे elements हैं. अब किसके साथ कौन सा यहाँ पर एडिशन होगा? नॉर्मल एडिशन होगा. जस्ट इसके साथ ये एडिशन होगा, A11 प्लस B11, ये मिल गया तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, एडिशन का फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड जो है इसके साथ ये, दैट मीन्स A12 प्लस B12. फिर इसके बाद A13 प्लस B13. ठीक है, ये A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33. और ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, M क्रॉस N ही रहेगा. दैट मीन्स एडिशन बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. If you are taking the first element, then you will have to choose the first element of the second matrix also. Okay, so just proceeding this way, you will get the addition results of these two matrices A plus B, and you will get the structure. Okay, so if you want to take some example, just कोई भी एग्जाम्पल दो लो, ये लिखो, पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ये लिखो, एग्जाम्पल लिखो. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल चूज कर लेते हैं.
सपोज 1 3 5 2 1 7 3 1 9, ठीक है। और यहाँ पर 4 1 3 3 5 4, फिर 7 3 9. So if you have these two matrix, then if you are going to find the value of, that means addition, okay, so then the result will be 1 plus 4 कितना होगा 5, गया फर्स्ट एलिमेंट, 3 plus 1 that is 4, 5 plus 3 that is 8, बस कंप्लीट, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। सिमिलरली 2 plus 3 that means 5, 1 plus 5 that is 6, 7 plus 4 that is 11, 3 plus 7 that is 10, 1 plus 3 that is 4, 9 plus 9 that is 18. तो a प्लस बी का वैल्यू ये मिल गया, एकदम सिंपल, ठीक है। तो ये है एडिशन। सब्सट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं, मिडल में माइनस साइन आएगा और जैसे तुमने प्लस किया वैसे ही होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हेडिंग दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ two matrices, which is very important concept of the matrix chapter, and most of the students used to face a lot of problems in this multiplication concept only, okay. So here actually in this multiplication many more calculations, clumsy calculations used to be there, and that's why maximum number of students they are stuck while they were actually using this multiplication concept of matrix chapter, okay. So just see it very carefully. So multiplication of two matrices, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन देखो, इफ ए वही लिखो aij m क्रॉस n एंड bij m क्रॉस n, यहां पर जो है सेम ऑर्डर नहीं होने से भी चलेगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सेम ऑर्डर भी हो सकता है और सेम ऑर्डर नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर यहाँ पर P क्रॉस Q दे दो, व्हेयर ऐसे लिख लो, व्हेयर M इक्वल्स टू P और M नॉट इक्वल्स टू P, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर M क्या है, रो है कि नहीं, और n क्या है, कॉलम है। तो यहां पर p क्या है, रो है, और q क्या है, कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, और n इक्वल्स टू q और n नॉट इक्वल्स टू q, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ओके। सो देन a इक्वल्स टू, इफ आई टेक दिस a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23 a31 a32 a33, b equals to same b11 b12 b13 b21 b22 sorry b22 and b23 b31 b32 b33, right? Then a ये बहुत बड़ा होगा, then a क्रॉस b इक्वल्स टू, बहुत बड़ा होगा ये, ठीक है। ठीक है, अच्छा प्रोसेस क्या है मल्टीप्लिकेशन का? प्रोसेस ये है L दिमाग में जस्ट L सेट करके रखो। L कैसे? L देखो, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स से जब तुम एलिमेंट्स चूज करोगे तब ऐसे चूज करते रहोगे, और यहां से जब एलिमेंट चूज करोगे तब ऐसे चूज करते रहोगे। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह होगा, देखो ठीक तरह से देखो, A11 इंटू B11 हो गया, A12 इंटू B21
राइट, A13 इंटू B31, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लीकेशन होके इसके साथ ये माने A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, ये पूरा मिला फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट मिला है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट लिखने में जगह चला गया, और भी बहुत बड़ा जगह चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, उसको पूरा मिटा दो, मिटा के पूरा न्यू स्टार्ट करो। ए क्रॉस बी यहाँ पर लिखने से नहीं होगा, ऐसे लिखो ए क्रॉस बी, ये ऐसे स्टार्ट करो और इधर जाने दो, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या था, तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होगा ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। देखो एल डायरेक्शन है ना, ये एल डायरेक्शन, ठीक है। देखो क्या होगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, ये मिला फर्स्ट एलिमेंट। अब रो सेम ही रहेगा क्योंकि आप फर्स्ट रो का काम करेंगे अभी, इसलिए यहां पर फर्स्ट रो के ऊपर ही आप रहेंगे। तो फिर से फर्स्ट रो और यहां का जो सेकंड कॉलम है वो मल्टीप्लाई होगा। सो दैट मीन्स A11 B12, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32, A13 इंटू B32, ठीक है। ये गया सेकेंड, ठीक है। फिर थर्ड वाला आओ, थर्ड एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट है, प्लस करके कुछ आंसर मिलेगा, ये पूरा एक एलिमेंट है, वन एलिमेंट। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट जाएंगे, जब थर्ड एलिमेंट निकालेंगे तब ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, क्या होगा, A11 B13, A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23 प्लस A13 इंटू B33, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रो कंप्लीटेड, फर्स्ट रो कंप्लीट, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का। सेकंड, अब सेकंड रो आएंगे, तो जब सेकंड रो से डील करेंगे तब ये होगा हम लोगों का सेकंड रो। अब वही प्रोसीड्यूर चलेगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट, इसके साथ ये मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट, इसके साथ ये मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट, ठीक है। लिखो तो क्या होगा, A21 B11, A22 B21 प्लस A23 B31, ये गया फर्स्ट एलिमेंट। अब यही रो सेकंड कॉलम इसका करोगे, ये मिलेगा, दैट मीन्स A21 इंटू B12, A22 B22, A23 B32 गया सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का। अब थर्ड एलिमेंट जाओ, ये गया सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, ये गया सेकेंड एलिमेंट।
फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, रो कौन सा है, सेकंड रो का। अब थर्ड एलिमेंट आएंगे, तो जब थर्ड एलिमेंट आएंगे तब रो तो वही रहेगा, बट एक कॉलम ये चूज करना है। सो दैट मीन्स A21 B13, A21 B13, A22 B23, A23 B क्या होगा 33, ये गया थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो का। ठीक है, अब लास्ट रो में आओ, दैट मीन्स ये, अब लास्ट रो इसके साथ फिर से फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स A31 B11, A32 B21, A33 B31। ठीक है, यहाँ पर A31 B12, फिर A32 B22, A33 B32, यहाँ पर A31 B13, ठीक है, प्लस A32 B23, A33 B33। ये देखो पूरा मल्टीप्लिकेशन का ये थर्ड एलिमेंट है, ये सॉरी दैट मीन्स थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ये हो गया पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट, देखा ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो कैलकुलेशन जो है बहुत क्लमजी है, इसके लिए यहाँ पर गलती होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये दैट मीन्स ईजी है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट ईजी है, बट कैलकुलेशन थोड़ा क्लमजी है, इसके लिए गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो गलती कहाँ पर होता है, गलती हर टाइम जो है ईजी चीज़ में ही होता है। हम लोग का जो क्लास 12 में जो है क्या होता है कि गलती जो होता है ना वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट में कोई यहाँ पर गलती नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, ये लिख लो, पूरा लिख लो, है एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। A इक्वल्स टू 1 3 5 2 3 4 4 5 1 और B है 3 5 4 1 2 3 4 1 2। फाइंड ए बी का वैल्यू निकालना है। वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, बहुत शॉर्ट टाइप में, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट है, गलती होने का चांसेस ज़्यादा है ना, इसलिए दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ नाउ ए बी लो, शुरू करो। ठीक है, देखो पहले ये फिर ये ना, तो 1 इंटू 3 मतलब 3 प्लस 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3 प्लस 5 इंटू 4 दैट इज 20। ये मिल गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट जाएंगे ये और ये कॉलम, दैट मीन्स 1 इंटू 5 दैट इज 5 प्लस 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6, 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5। दैट मीन्स प्रोसेस समझ में आ रहा है। ये जो जब तुम फर्स्ट रो का काम करोगे तब ये जो है ना फर्स्ट रो में ही फिक्स रहेगा। फर्स्ट रो के साथ ये इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के साथ इसका सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो के साथ इसका थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो करो, यहां पर क्या होगा, तीसरा ये और ये मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1 इंटू 4 दैट मीन्स 4 प्लस 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9, 5 इंटू 2 दैट इज 10। हो गया फर्स्ट रो कंप्लीटेड। सेकंड में आओगे, दैट मीन्स ये और ये तीनों कॉलम करस्पॉन्ड, दैट मीन्स कंसेक्यूटिवली जस्ट वी विल हैव टू मल्टीप्लाई। तो दैट मीन्स इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो है 2 3 दैट मीन्स 6 प्लस 3
1 दैट इज 3 प्लस 4 4 दैट इज 16, ये गया फर्स्ट एलिमेंट। अब इसके साथ रो फिक्स रहेगा, सेकंड कॉलम आओ, 2 5 दैट इज 10 प्लस 3 2 दैट इज 6 प्लस 4 1 दैट इज 4। अब इसके साथ थर्ड 2 4 दैट इज 8 प्लस 3 3 दैट इज 9 प्लस 4 2 दैट इज 8। ठीक है, अब ये और चलता रहेगा। 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 4। 4 इंटू 5 दैट इज 20 प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 10 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1। फिर दिस और दिस 16 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया। दैट मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब प्लस करो, देखो मिल जाएगा आंसर। यहां पर ए बी का आंसर क्या होगा, यहां पर 3 6 26, यहां पर 10 16, यहां पर क्या है 14 और 9 23, यहां पर क्या होगा 9 और 16 25, इधर 20 और इधर 16 और 9 25, इधर 9 और 12 21, इधर 30 और 1 31, इधर क्या है 18 प्लस 15 है ना, ये 18 प्लस 15 33, बस कंप्लीटेड। ए बी का आंसर, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या है ये। अब जो है देखो, ये प्रोसेस जस्ट तुम्हें याद रखना है, डिफरेंट मैट्रिक्स तुम्हें दिया जाएगा, जस्ट यू नीड टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है यहां पर। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द प्रोसेस एक्चुअली ना, जैसे तुम्हें मतलब प्रोसेस याद रख के मैट्रिक्स कोई भी दे कैसे मल्टीप्लाई करना है, एल सिस्टम, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, मतलब डायरेक्शन इस तरफ होगा और सेकंड मैट्रिक्स का इस तरफ होगा, इसलिए इसको एल बोला जाता है, मतलब एल डायरेक्शन बोला, मैं बोलता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं है कि एल डायरेक्शन है, जस्ट एल याद रखो। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर अगर माइनस वाला टर्म्स हो, माइनस यहाँ पर प्लस माइनस ऐसा टर्म्स हो, तो यहाँ पर जो है ना गलती होने का चांसेस जो है ना बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आंखों के सामने जो है नंबर्स, चारों तरफ से नंबर्स दिखाई देता है और गलती हो जाता है। तो गलती मत हो, इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बार बार प्रैक्टिस करो उसको मन से। कोई भी एग्जांपल लो, यहाँ पर ये क्या एग्जांपल्स मैंने बुक से लिया था, क्या ये मन से लिया था मैंने, जस्ट आई हैव चूजन फॉर जस्ट सेटिंग एन एग्जांपल है, जस्ट ओके। तो यहाँ पर जस्ट सेट एन एग्जांपल इन योर माइंड एंड जस्ट यूज इट एंड इन योर कॉपी, जस्ट सॉल्व इट हियर। ओके, सो जितना सॉल्व करोगे उतना ही क्लियर होता जाएगा, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग देखो यहाँ पर अब तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस तो इतना ज़्यादा नहीं करते, इसलिए देखना कि बीच बीच में है ना कैलकुलेशन जो है ना वो मिस हो जाता है, कैलकुलेशन गलती हो जाता है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है ना धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हैं ना। है कॉन्सेप्ट जानते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझा दूंगा, डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको कैसे करते हैं वो बोल के दे दूंगा, बट देखना कि मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस एक मतलब ऐसा कोई क्लमजीनेस आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली फॉर द लेगिंग ऑफ द प्रैक्टिसेस। ओके, तो यही दो कॉन्सेप्ट मुझे आज ये डिस्कस कराना था। बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं, वीडियो बहुत ही छोटा है, लेक्चर बहुत ही छोटा है, जस्ट पूरे लेक्चर को ठीक तरह से देखना, जिससे मैं कल जो है एक लेक्चर अपलोड कर सकूं, इसमें ये सब कॉन्सेप्ट्स यूज़ होगा, एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।